वो अच्छा है। अरे ऑडियो बैठे हैं वो गाड़ी में सुन सकते हैं, रिवीजन होता है गाड़ी में, वो बराबर है सब। और ऑडियो में Recording in progress. more content, that is more important. That is actually true. Chalo, online, I hope audible and visible. Somebody can confirm that quickly. Okay, chalo. साथ में मौका दे रहा है मेरे वाला। मैं अकेला ही दे रहा हूँ। જો આજે અવાજ કરવાનો કઈ મતલબ નથી, તમે લોકો આટલા છો, મને બધું ક્લિયરલી દેખાય છે, બરોબર? ઓનલાઈન બી કોઈ છે? હા, ઓનલાઈન છે? ઓનલાઈન તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે. वो क्या मिलती है एक तो चलो सिंगल आके मिलती है अपनी बता। चलो, एमसीक्यू पूछ रहा हूँ, ठीक है? ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछता हूँ, जवाब देना, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं पता तो लिख सकते हो. फर्स्ट स्टेटमेंट, द यूएनएससी has 5 permanent and 5 non-permanent members. False. True or false? False. False. 15 non-permanent. 10 total 15, 10 non-permanent. Very good. False. Why? Because Security Council has total 15 members, 5 permanent with veto power and 10 non-permanent 2-year term. selected for every 2 years. 2-year term. Okay. Next, the United Nations Security Council and the UNGA, United Nations General Assembly, jointly elect judge to the International Court of Justice (ICJ) जो हेग में है. True or false? True. True. ठीक है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पहले सिलेक्ट करती है एंड दोस नेम्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. किसके लिए? फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे द हेग. जिसको नहीं पता ये इंफॉर्मेशन वो लिख लो एक बार. गवर्नमेंट अपॉइंट्स पे करना. हाँ, आईसीजे आपण बीच कसा માટે બી ન્યૂઝ માં હતું ને આપણા. ICJ, just like United Nations, is always in the news for one or the other reason. टाइम लिखने के लिए दिया है, बातें करने के लिए नहीं दिया है. Okay, little bit brief. The Parliament of India constitutes which organs or which bodies? 3 bodies, Rajya Sabha, Lok Sabha and the President. And the President. The Parliament of India is made up of 3 organs. ये already questions पहले पूछ चुके हैं एग्जाम में. Generally, you have a perception that it is always Lok Sabha, Rajya Sabha. But no Lok Sabha and Rajya Sabha can pass a law without the signature of President. So President is part of Parliament of India. ठीक है? Who summons and prorogue? Summons means house को बुलाना. Prorogue means house को बुलाना. Okay, now we are done for the all the work in this session. Who does this? Speaker. Both the sessions jointly या सिर्फ एक हाउस के लिए? Who summons and prorogue? Speaker. Speaker or the chairman. President of India summons and prorogue the house. याद रखना ये आप सब लोग स्पीकर ही लिखोगे. ऑनलाइन भी काफी स्टूडेंट स्पीकर का है. समन और प्रोरोग कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. बट हाउस अर्जन कौन करता है? स्पीकर. हाउस इट्स अर्जन फॉर द डे. मतलब आज के लिए अर्जनमेंट कौन बोलेगा? स्पीकर. बट व्हेन द स्पीकर अर्जन्स अ हाउस फॉर द डे, he says that the house will reassemble
tomorrow, or he gives a specific time for the reassembly of the house. President just said. Nahi. But when he says that house is adjourned, sign that. That means there is no fixed time for reassembly. ठीक है, ये दोनों कौन करता है? स्पीकर. लिख लो. होगा वैसे ना ना तो चलिए कहना स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बताना है आपको. ठीक है. The Constitution mentions that the Parliament has to meet for 3 sessions in a year: budget session, winter session, and summer session. If I am not wrong, right? Monsoon session. Oh yeah, monsoon session. True or false? False. ठीक है. There is no such thing mentioned in the Constitution. नहीं, वो भी नहीं mention किया है. Please pay attention. The Constitution says that the session of the parliaments has to be started with no more gap of 6 months. एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए. That is the only condition mentioned in Constitution. These 3 sessions are the innovations of Parliament of India, not mentioned in Constitution. ये सब कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कभी कभी ट्रिवियल फैक्ट्स जो कहते हैं, जो कभी कभी कोई एग्जाम में पूछ लेते हैं. Is the term budget mentioned in the Constitution? तो क्या मेंशन है? Financial statement. Yes. Article 112 talks about annual financial statement. ठीक है, लिख लो. ओके, लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ाया था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में. आई होप यू गाइस रिमेंबर. उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स. द स्टेटमेंट इज अबाउट DMH11. वो क्या बताया था मैंने? वो क्या है? DT cotton. नहीं. Yes. Mustard seed. Yes, very good. DMH11 is mustard seed. ठीक है, इट्स अ मस्टर्ड क्रॉप. पूरा मैंने ऑयल के बारे में बताया था, सब कुछ बताया था. ठीक है. नाउ स्टेटमेंट नंबर 1. इट इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. मैंने जस्ट बोला इट इज अ मस्टर्ड विच इज डेवलप्ड. ट्रांसजेनिक मींस जेनिक मींस जीन्स. हमने जीन्स क्रॉस की है. ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बनाया था ये भी पढ़ाया था, लिख लो. सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड ऑफ क्रॉप प्लांट्स. सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, प्लीज याद रखना जेनेटिक मॉडिफाई. हमने वो एजेंसी के बारे में भी बात की थी, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, which functions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है. What is the importance of this mustard is that it is herbicide tolerant mustard. HT mustard, herbicide tolerant. Herbicide मतलब जो herbs इस mustard को harm करेंगे उससे वो protected है. ठीक है, it can tolerate it.
हो गया. राइट अ न्यू टॉपिक, डिजी यात्रा. डिजी यात्रा, डिजिटल यात्रा को क्या कर दिया है, डिजी यात्रा. यात्रा मीन्स ट्रैवलिंग. लिखो, विद द हेल्प ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. Airport. With the help of facial recognition technology, we will be having contactless handling of passengers at airport. आद्या जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, एक वीक पहले तक आप छोड़ सकते हो, ठीक है, आज तक का पढ़ लेना. क्या करेंगे, द पैसेंजर्स जो आप होते हो अभी क्या है, एवरीथिंग इज चेक, द पर्सन स्टैंड्स देयर, ही चेक्स योर पासपोर्ट, ही चेक्स योर टिकट एंड देन लेट यू थ्रू. बट डिजिटल यात्रा विद द हेल्प ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, समझ गए. Sir, we will be having contactless handling. ऑफ पैसेंजर्स. Sir, the security check करेगा. Security check is a totally different matter. This is about letting you at the first time, you अच्छा, know, भगवान inside. का- Yes. किसने ये इनॉग्रेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्टर एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली. इंदिरा गांधी है? ओके, राजीव. अगर आप लोग ही बोलोगे तो बात कहाँ से सुनोगे मेरी. Ministry of Civil. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली. कहाँ पे ये सिस्टम शुरू किए, द 3 places where this is started is दिल्ली, वाराणसी एंड बेंगलुरु. You can use your face for boarding, okay, but what is the condition, that Aadhaar card is mandatory. ठीक है. ओके, डन. चलो, न्यू टॉपिक. न्यू दिल्ली होस्ट, बेसिकली इंडिया hosted the first Indian and Central Asians meeting of National Security Advisor. इंडिया ने किसको होस्ट किया है, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स. ये आपने शायद पहले भी बताया हुआ कि इंडिया इज गोइंग टू पोस्ट कर. मे बी, बट ये अभी रिसेंटली. पाकिस्तान होगा. बैकग्राउंड लिखो, that in January 2022 India hosted the first India Central Asia Summit virtually. जनवरी में वर्चुअली मीटिंग की थी समिट इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, एंड नाउ वी हैव इनवाइटेड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली. इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था, अगेन इमेजिन सेंट्रल एशियन रीजन पढ़े हम. सेंट्रल एशिया के पास कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन है, अफगानिस्तान. प्लीज थिंक लाइक दिस. तो क्या बातें करेंगे, अफगानिस्तान. अफगानिस्तान आए तो छाबार पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ छाबार पोर्ट वी आर गोइंग टू ट्रेड विद अफगानिस्तान. तो चाबार पोर्ट के ऑपरेशंस इंडिया में भी करता है. हाँ, ठीक है, पीसफुल. फिर क्या बोला, हम सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, मीन्स बेसिकली वन ऑफिस विल बी क्रिएटेड इन न्यू दिल्ली फॉर इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ठीक है, एंड देन काउंटर टेररिज्म.
ये मैंने सेम चीजें हर जगह रिपीट होती हुई लग रही है आपको? Yes, sir. सो ऑलवेज हैव दिस पर्सपेक्टिव इन योर माइंड, ठीक है? अच्छा कनेक्टिविटी करेंगे, ट्रेड करेंगे, कल्चर बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कौन कौन आएंगी? दे आर द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, Kazakhstan. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। के टी एंड यू, के टी एंड यू बेसिकली कितने हैं? 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है? From long term perspective, this region is important for the energy needs of India because these states have lot of deposits for natural gas, uranium, which India definitely needs. तापी करके एक पाइपलाइन है, उसके बारे में लिख सकते हो. तापी stands for तुर्कमेनिस्तान, Afghanistan, Pakistan and India. Why Turkmenistan? Because Turkmenistan borders कैस्पियन सी, जहाँ पे नेचुरल गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है. सो बेसिकली इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मीन्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वी वांट टू इंपोर्ट दैट नेचुरल गैस टू इंडिया थ्रू तापी पाइपलाइन. पाकिस्तान मैंने बोला है अच्छी अच्छी बातें करनी होती है ये सारी मीटिंग में, ठीक है? तो अच्छी अच्छी बातें लगनी चाहिए. इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या अच्छी बात है? अरे बहुत होती है, ऐसा थोड़ी है. सेम है. मुझे भेज दो, मैं कितनी बात कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी है. होना चाहिए बात करने में. फिर मैं काउंटर टेररिज्म पे उनसे क्या बात करूँ? हाँ उससे पहले वो कार्ड डालेंगे। नहीं खुद नहीं होते, वो खुद नहीं होते. यू कैन कंपेयर एलिफेंट एंड डॉग. कहाँ मतलब लुक एट द साइज ऑफ इंडिया इन द सब कॉन्टिनेंट and the same logic. I am not that person. Same logic applies when you see yourself with China. China is a big country. India is a small country. India is a big country. Pakistan is a small country. मत्स्ययान मैंने बताया था कि नहीं बताया था? मत्स्ययान क्या होता है? The bigger fish eats the smaller fish. It's all logic. ठीक है? Okay guys, done with this. चलो आगे लिखो. Vijay Hazare Trophy is given in which sport? क्रिकेट. Cricket. And who won in 2022? सौराष्ट्र. Saurashtra. Very good. लिखो. विजय हजारे. Vijay Hazare. पैविलियन भी है ना वहाँ पे, मार्केट. Say no to cricket. You don't like colonial things. મોદી સાહેબે શું કીધું? આપણે આપણા પાસ્ટમાંથી બહાર આવો. ક્રિકેટ તો ઇન્ડિયન ઓરિજિનલ વાળો સર. No, we used to play gilli danda. That's a different sport. Don't we જો વ્યવહાર ચોખ્ખો કરવાનો. ક્રિકેટ ઇઝ એ કોલોનિયલ સ્પોર્ટ. Why to play it? બધું આપણે તો નવું કરવું છે ને, કાઢવું છે ને, કાઢ નાખો ક્રિકેટ. ગિલ્લી ડંડા. हाँ गिल्ली डंडा आई सपोर्ट, कबड्डी आई सपोर्ट. Why to support cricket? I am following Mr. Modi. He is such a great leader. We have to follow it. पूरा करो लेकिन अच्छा शिद्दत से, like me. ठीक है? सर कपड़े भी निकालने पड़ेंगे. वो पहनता हूँ, यहाँ नहीं पहन सकता. वो भी पहनता हूँ. Okay guys, next topic, very important. Human Rights Day is celebrated on 9th November or 10th November. 10th November. It's 10th wrong. December. 10th December. Sorry. ठीक है? Human Rights Day is celebrated on 10th December. 9th December एंटी करप्शन. ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऑलरेडी क्लैक में एक बार पूछ चुके हैं 5 क्वेश्चन. लकीली फ्रेगमेंटेशन में मैंने करवाया था तो हो गया था अच्छे से. इस बार आई डोंट वांट टू मिस आउट. 10th December was selected because a very significant document was signed on 10th December 1948. That is the world famous United Nations Declaration on Human Rights. United Nations
Declaration of Human Rights. See, it is a overarching document and it has plethora of rights guiding every aspect of human life. Political rights, civil rights, social rights, okay, creative rights, freedom of speech and expression rights, everything. It is a very big document and it has everything inside it. No to discrimination, yes to inclusivity, okay. 1945. 8 45 45 में कैसे बात करेंगे? ठीक है. 45 में तो बने थे. And whose job is to look after this? UNHRC. Yes, लिखो Human Rights Council, सिर्फ और सिर्फ Human Rights Council. Commission. Human Rights United Nations Human Rights Council. એમાં કहा ઓકે એમાં કમ તું કન્ફ્યુઝ જ રહે. હા, એ. જે હું કહું ને એ વાંચ અને એ લખ. But the ઘરે જઈને ટેલી કરજે કે મારું જે વિચાર NHRC में कमीशन आता है. वो इंडिया के लिए. हाँ. United Nations Human Rights Council. It is an intergovernmental body and it has 47 member states. कितने हैं? 47. कौन सिलेक्ट करेगा? अगेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ठीक है. एंड दे कंडक्ट यूनाइटेड यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू. यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एवरी 4 years. ठीक है. अभी आपको लगता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं. द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू which is published every 4 years. So the last one they criticize the Indian government for meddling in the appointment of the National Human Rights Commission. कि आपका जो National Human Rights Commission है, you are making political appointments or you are politically biased in the Human Rights Commission. And it is not inclusive. Inclusive मतलब different minorities, discriminated population are not there on the panel. So government came up with a amendment in 2019 and then they changed the composition that in the National Human Rights Commission there should be a woman, there should be people who are from the marginalized section represented on the commission. समझ गए? इंडिया का रिव्यू कब हुआ था? 1st, 2nd and 3rd 2008, 12 and 17. तो जस्ट मैंने आपको जस्ट बताया दैट 17 में जो हुआ था इन दैट इंडिया वाज क्रिटिसाइज्ड. सो 2019 में वी केम अप विद एन अमेंडमेंट. ठीक है. देख लेना उसके भी पैरामीटर्स. इट इज योर जॉब नाउ टू लर्न समथिंग अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो 1993 में फॉर्म हुआ था. I will ask question on this National Human Rights Commission. What is the composition of the commission? What are the conditions for chairman and members? And what is the broad function of National Human Rights Commission? I will ask questions in next lecture. ठीक है? Next lecture. तो next lecture में फिर होगी. I don't know जो भी होगा उनके बारे में. रमेश है तो कर. ठीक है. सो आई डोंट नो, लेकिन ये अभी है. ठीक है. जब भी होगा मुझे याद रहता है. यू नो थिंग्स. ठीक है. ओके गाइस, क्लियर? हु इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट अ नोबेल? सीवी रामन. सीवी रामन. हु इज द फर्स्ट? चलो, लेट मी बी मोर प्रिसाइज. Who is the first non-European to win a Nobel for literature? रविंद्रनाथ. Very good. ये इतनी गलती करके मत आना. It is Rabindranath Tagore in 1913 for his work Gitanjali. ये 10 दिसंबर को ही मिला था उनको, इसके लिए पढ़ा रहा हूँ. ठीक है.
फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी प्रेजेंटेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर गीतांजलि, कब? 1913. Additional information, after a while he was knighted by the British government or by the monarch of the UK because of his achievement as a British subject. But after Jallianwala Bagh, he renounced his title or he renounced his knighthood. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर. Clear? Which party recently became आम आदमी India's पार्टी। 9th national party? आम आदमी आम आदमी पार्टी. ठीक है, एमसीडी का गुजरात ब्रैकेट में लिख सकते हो. चलो कुछ बताना है. क्या इट्स अ लोटस पार्टी. कॉमर्स हाँ, उसने क्या किया तुम लोग पॉलिटिक्स समझोगे आगे जाके. सब ओके, चलो. बट व्हाट हियर इज इम्पोर्टेंट इज टू नो द conditions 6% of 4 states through which you can be granted a status of national party. चलो लिखो. Recognized in 4 or more states. First condition. So recognizing 4 or more states. as states Or 6% of total valid votes. 6% of total valid votes in any 4 or more states. In the last Lok Sabha or assembly elections. And has at least 4 MPs in the Lok Sabha, in the last Lok Sabha polls. दो कंडीशन हुई. नाउ थर्ड. और has won at least 2% of the total seats in the Lok Sabha, or 2%, at least 2% of seats, total seats in the Lok Sabha from not less than 3 states. ठीक है, आम आदमी पार्टी का हो गया, 9th बन गई. ठीक है, तो पहले की 8 के बारे में जान लेते हैं. लिखो. बीजेपी, INC कांग्रेस, बीएसपी, फिर उनके बाजू वाले दीदी ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी. सर वो पार्टी का मतलब को समझ में आया. एमपी बीजेपी पार्टी सांभळी नव्हती ऍक्च्युअली. नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड सीपीआईएम मार्क्सिस्ट. माओइज्म सिलेक्ट करके मत आना. इट्स बैंड अंडर यूएपीए. ठीक है, So but Maoists भी तो थे ना. सर वो बैन हो गए. अभी आदिवासी को अगर माओइस्ट बुलाना है तो ऐसा रखते हैं. ठीक है, देखो. नाउ इट इज अ बिग अचीवमेंट बिकॉज एज अ नेशनल पार्टी यू आर गिवन नंबर ऑफ कंसेशंस व्हेन इलेक्शंस आर अप्रोचिंग. फॉर एन एग्जांपल, you have dedicated time slots on national TV and national radio. ठीक है, you can have electoral rolls and all the name of the details of the candidates in a area given by Election Commission of India. ठीक है, throughout India please. and you can also have a party center in the capital state New Delhi. ठीक है, आपको 40 स्टार कैंपेनर्स भी लाने को मिलते हैं. पता है ना, स्टार कैंपेनर बॉलीवुड स्टार को उठा लाते हैं, क्रिकेटर्स को उठा लाते हैं. ठीक है, सो दिस आर द राइट्स व्हिच इज गिवन टू अ नेशनल पार्टी. ठीक है,
now one homework for you is, अगर नेशनल पार्टी के ये क्राइटेरिया है, then what are the criteria for state party? That is your homework. 6% of vote share of the state assembly election. नहीं, 2% नहीं, 6% is state law. In the last. तुम बोल रहे हो? सर एमपी भी है. No idea. You guys are preparing for a competitive examination or an examination in which you need to score marks. That is it. That's the only job. You don't have to join any of the political party yet. फिर आपको आपकी भविष्य डिसाइड करते हैं, ठीक है? हरी माऊ शक्ति 2022. Next news. हरी माऊ शक्ति HARIMAU. हरी माऊ शक्ति 2022. किसके साथ होती है हमारी ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज? मिलिट्री मतलब एयरफोर्स और नेवी नहीं है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज. किसके साथ होती है? नाम क्या है? हरिमाऊ शक्ति 2022, which is the So France, साउथ ईस्ट एशिया. लिखो मलेशिया, and this exercise was held in Malaysia only, ठीक है? In a place called Pulai Kluang, PULAI KLUANG. KLU. ANG. जंगल टेरेन में करेंगे ये एक्सरसाइज. ठीक है, चलो. When is India? क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पढ़ा है, आंसर देना है. When is India going to assume the chairmanship of Wassenaar arrangement? January 20. January. 1st January 2023. When did India join Wassenaar arrangement? 2017 December. और कौन से नंबर के स्टेट थे हम? 42nd. It is about to prohibit the transfer of technology which is used for dual edge technology. ठीक है? The body was formed in 1996 after the Cold War era to stop the export of this critical technologies. ठीक है? प्लेनरी के बारे में बताया था, which is the decision making body. ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए अभी इसमें. क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट, which organization releases this? FATF. FATF. ऑप्शन सुनना, ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार. ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार. Which of the following countries is not on blacklist? पाकिस्तान. वो ग्रे में शिफ्ट ग्रे में थे. ग्रे में से भी निकल गए. निकल गए. टर्की स्टिल. Got it? Yes. So बाकी ब्लैकलिस्ट कंट्री कौन सी हो गई? तीन ही है. पाकिस्तान, ईरान, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार. वेरी गुड. इंडियन नेवी डे. इंडियन सूरत. नेवी डे. थीम फॉर 2022 कब सेलिब्रेट किया जाता है?
इंडियन नेवी डे, याद है तू थोड़ा दिया वेरी गुड वेरी गुड। कुछ यार दिन पहले ही- तुम लोग कुछ सीखते नहीं हो क्या? आजकल क्या चल रहा है? अपने देश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कम ऑन, 5th के 4 दिसंबर आप लोग ने वोट दिया कि नहीं दिया? नहीं सर हम कैसे वोट दें? नेक्स्ट ईयर इट इज ऑन 4 दिसंबर। वोट पैट्रियोटिज्म होना चाहिए ना यार। अभी कितना चल रहा है, ठीक है, जो डे है फेमस है, मतलब ये चीज कुछ हो ना हो पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, ठीक है। भले खाने पीने के थोड़े वादे पड़े लेकिन पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, ठीक है। 4 दिसंबर का थीम क्या है इंडियन नेवी डे का? स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम कारगिल माने गोल्ड। काय वो ऑपरेशन ट्राइडेंट डिसाइड करने मैं कीधूं था ना। ऑपरेशन स्वर्णिम विजय दिवस वर्ष। वर्ष Why? Because 1971 Bangladesh Liberation War. So first on the 4th of December, Indian Navy launched Operation Trident, which was a very successful operation. We destroyed Karachi port, ठीक है, of Pakistan. ठीक है. So to commemorate that, we already celebrate 4th December as Indian Navy Day, and this is 50 years of completion. इसके लिए क्या नाम दिया है? स्वर्णिम वर्ष। हो गया। इंडियन नेवी का प्रीडिसेसर was established by ईस्ट इंडिया कंपनी in 1612, ठीक है। कब किया था? 1612 में इंडियन नेवी। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, वी हैव लर्न अबाउट द चेंज ऑफ द फ्लैग and we have talked about submarines, ships which are launched project 75 15, ठीक है। इन सबको मिक्स कर करके वो कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इट पॉसिबल, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1972 1972-73. Why? Because tigers were on the brink of extinction. ठीक है? But then it is considered as one of the most successful wildlife saving initiatives by Indian governments. ठीक है? And we should give credit to इंदिरा गांधी। रेड बेड बड़ी चाव- ठीक है। So seeing that success, Supreme Court recently said that we need to launch a project called Project Great Indian Bustard. लिखो। नेशनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई प्रोजेक्ट लॉन्च करो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। दे आर वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, दे आर वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, ठीक है। मस्टर्ड बस्टर्ड है और कुछ मत सुनना, हाँ। इट्स बस्टर्ड, ठीक है। हाँ, पहले से था नहीं इसका मस्टर्ड का बी, बस्टर्ड, ठीक है। ओके, गोइंग अहेड, दे आर फाउंड इन ड्राईलैंड इकोसिस्टम। ड्राईलैंड कहाँ पे होंगे? तो फिर राजस्थान। राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। बट वंस अपॉन अ टाइम दे वर फाउंड थ्रू आउट द इंडिया, बट नाउ ओनली फ्यू adults have remained in the region of गुजरात एंड राजस्थान। इनकी डेथ हो जाती है, कैसे पता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। जो हाई टेंशन लाइन होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, वहां पे वो अटक के मर जाते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी नीड टू सेव दिस एनिमल्स, वी कांट लेट देम एक्सटिंक्ट बिकॉज देयर आर आई थिंक लेस देन 50 और 100 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिमेनिंग, ठीक है। तो उनकी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वेरी गुड, लिखो। दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उनको दूर से दिखाई नहीं देता पावर लाइन और वो डायरेक्ट अंदर क्रैश कर देते हैं, ठीक है। इफ इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देन जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA 1972, उसके कौन से शेड्यूल में होंगे?
one with the highest protection. और ये हमारे पड़ोसी मुल्क में भी मिलता है. सो अभी गवर्नमेंट को ऐसा डाउट है कि ये लोग उड़ के कहाँ चले जा रहे हैं, बाजू में पड़ोसी में हो रहा है ऐसा. ठीक है, बिकॉज सम इंडियन बस्टर्ड हैव बीन साइटेड इन द पाकिस्तानी साइड. ठीक है, सो दिस आर ऑल द इश्यूज दैट वी नीड टू कंसिडर. बहुत बर्ड चोरी कर रहे हैं. नहीं, ठीक है, ओके. उस दिन मेरा फिर पहले थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स इन ड्राई एंड एरिड रीजन में मिलते थे, बट नाउ इट इज ओनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात. लेस देन 150 इंडिविजुअल्स आर रिमेनिंग. एंड द हॉटस्पॉट नेशनल पार्क जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस है वो कौन सा होगा? रणथंभौर. नहीं, डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर साइड. यस, डेजर्ट नेशनल पार्क. भाई रणथंभौर मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान में चले गए उड़ के, रणथंभौर यहाँ पे आया, पाकिस्तान यहाँ पे आया, तो क्या इतना उड़ के जाएंगे? यस, दे आर वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड्स. वही तो कहा मैंने. इनको क्या पता कितना क्या. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अगेन इम्पोर्टेंट. IUCN याद रखना. हमने चीता के बारे में पढ़ा था, तब काफी पढ़ा था. ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट. ठीक है, गैस लाइटिंग कौन सी डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर बोला था? नहीं, ऑक्सफोर्ड तो कुछ नया ही आता है, ये नया. भाई कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन जाए बिना बताना. वेबस्टर बियॉन्ड क्या, बियॉन्ड वेबस्टर. वेबस्टर, मरियम वेबस्टर. वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बोला है? गैस लाइटिंग. ठीक है, हमारी जनरेशन में काफी प्रचलित वर्ड है. ठीक है, आपके साथ हुआ होगा, आपने किसी के साथ किया होगा. ठीक है, सो चलता है. ठीक है, इट्स इन ट्रेंड. ट्रेंड. इट्स ट्रेंड. यस, ठीक है. ऑक्सफोर्ड ने भी अभी नया वर्ड निकाला. आ रहा हूँ. बाय वेबस्टर ना ये वाला. ये Oxford Dictionary declares goblin mode as word of the year. अतरंगी. नाम क्या था ऑक्सफोर्ड का? Goblin mode. Green goblin देखा है ना, स्पाइडरमैन विलन. उसमें से ग्रीन हटा लो, गॉब्लिन रख लो और मोड आगे लगा दो. गॉब्लिन मोड. COC ठीक का है. भी होता है. कैसा? देखो, G20 के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, but see how the questions can be asked, that we might not have covered it, we might have missed it, but that is all right, because ऐसे हर एक चीज याद रखेंगे तो तकलीफ हो जाएगा. अभी मैं आपको पूछूं, when was the first G20 summit was held? नहीं है. नहीं पता ना. सर ना पेरिस में. But you must have known so many other things, must have known so many other things. लिखो, 99 में हुआ था फर्स्ट. 1999 में दोस्त वो फॉर्म हुआ था. ठीक है, अच्छा तुम तो वो गलती कर रहे हो जो सबसे मेन है. ठीक है, आप बता दो सर. हाँ तो वो तो बताऊंगा ही ना. द फर्स्ट समिट ऑफ G20 वॉशिंगटन DC 2008. चेक 2008 में. यस, सो कुछ मेरे बहुत ही जो पढ़े लिखे एडवांस दोस्त थे, वो लोगों ने मुझे कहा कि इट्स द कैरिस्मा ऑफ आवर लीडर दैट वी आर हैविंग आवर प्रेसिडेंसी. आई वाज लाइक छोड़ो, कुरकुरे पे फोकस करो. मैं कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं है. इट्स द रोटेशन दैट इज व्हिच सपोज वी हैड नॉट. वो इस बार हर बार हमारा तो कैसा आ गया सबका. लेकिन चलो कोई बात नहीं, मान लिया. अगर कहा तो मैंने मान लिया. सर मेरी फैमिली में भी बोल रहे थे अरे तुम मोदी जी के अभी बीच में आर्टिकल. आर्टिकल वो लोग हमारे जितना पढ़ते थोड़ी ना. सर आई थिंक आर्टिकल में पे था कि मोदी विल मेक G20 द न्यू UNFC या समथिंग. ओके, हाँ तो हाँ, क्यों नहीं. अभी क्या है, सब कुछ शुरू ही हुआ. इज द ब्रह्मा हिमसेल्फ, द क्रिएटर. ठीक है, तो हाँ मान लो. व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, पर आपको दुख नहीं हुआ ऐसे सुन के? और नहीं यार,
मैंने सब छोड़ दिया तू मैंने बोला ना, आई एम गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, सो आई एम फार अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स टू हेल्प विद एवरीबॉडी। ठीक है। Back to US. या ठीक है। अच्छा ये होना सर हमारा साथ था। हाँ, चलो तो नेक्स्ट ईयर નથી કે છો नेक्स्ट ईयर फॉल, यस, सो नो विल बी ऑगस्ट हुई तो छो हाँ, તો પછી શું ઓનલાइन क्लास લેજો ત્યાંથી જી आई डोंट माइंड, या आई वुड लव टू, मतलब मजा आता है, हाँ तो करना व्हाई नॉट, ठीक है। हम क्या करेंगे ऐसा हाँ, एग्जाम आएंगे फेल हो जाएंगे क्लास में Like कोई दूसरे ओके नेक्स्ट, दूसरे सब इट्स अ फैक्चुअल न्यूज, पूछ सकते हैं इंडिया बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बाय रिप्लेसिंग जापान, बोल ठीक है। फर्स्ट कौन होगा? चाइना वेरी गुड। बताओ ना कहीं ना बोल तो चाइना कैसा इसमें इजी हार्ड मैथ्स कैसा है बाकी सब मैथ इजी मैं तुम्हारा साथ से क्या तो मैं कर दूं क्या इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर रिसेंटली हेल्ड कहाँ पे हुआ था? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इंडिया के तो नहीं पता? एनीबॉडी ऑनलाइन? वाराणसी ऑनलाइन जाए बिना आंसर देना, लेकिन वाराणसी 41st India's International Trade Fair दिल्ली के बाद was held in Pragati Maidan, New Delhi. It was inaugurated by Piyush Goyal, our Commerce Ministry Chairman, sorry, क्या Minister, ठीक है, Union Minister. What is the theme? Vocal for local and local to global, ठीक है. Yeah, it will help us to make our speech clean, ठीक है. And which are the हाँ, vocal for local and local to global, ठीक है. आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सोच के करियर डिसीजन। Uttar Pradesh and Kerala are participating as focus states in the fair. केरल केरल के Uttar Pradesh and Kerala are participating as focus state. Okay, very simple question. Factual. I hope आएगा. Jammu Kashmir and Ladakh, these two union territory were created in which year? 2000? Very good guys. ठीक है. जम्मू कश्मीर लद्दाख की ऑर्गेनाइजेशन Total how many union territories are there right now? 8 8. ठीक है. 9 नहीं 8. इसके लिए पढ़ाता हूँ ये भी. यार बिना याद रखो. And it is about, देखो आपको बताता हूँ रियल स्टोरी. I was teaching this 2 years back यहाँ पे. So I taught students that now onwards Dadra Nagar Haveli will be considered as a part together with Daman Diu. Exam में question क्या आया था? How many total union territories? They all of them wrote 9. But what is the yes? दो बनाए और एक, but still, so that happens 8 states are union territories. ठीक है. इसके लिए India US Economic and Financial Partnership heading लिखो. India US Economic and Financial Partnership.
ठीक है, सिर्फ कुछ लाइन है यूएस के रिलेशन के साथ कुछ आए तो हमें पता होना चाहिए that India and US both will work together. India and USA will both work together to implement the G20 common framework for debt treatment. Debt उधार G20 के साथ एसोसिएटेड है बट फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई थॉट करवा देता हूं. द नेक्स्ट both nations are committed to share the financial account information. Financial account information under FATCA. FATCA means अरे यही लिखा है FATCA, FATCA. हाँ, Foreign Account Tax, Foreign Account Tax Compliance Act. देखो, from the two statements we can learn that basically we are trying to bring transparency in the way we are doing business with USA and USA with India, so that ease of doing business can be established. ठीक है, समझ रहे हो? Next, recently the festival काशी तमिल संगम was held. कहाँ पे? वाराणसी. काशी. प्रयागराज. Oh wait, my bad. वाराणसी. Sorry. Happens. ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं? Long story short, मोदी. to establish a more cultural connect of South with the North Indian history. कि हम आपके हैं, हम एक ही हैं, हम आपके कौन है कि हम एक ही है. Basically, that we share the same culture, history, etc. पर वो नहीं है. No comments on that. I don't want to talk about Dravidian movement and the other movements. ठीक है, छोड़ो, इसलिए तो कहा it's better to go to a place which has a history of विदेश. 400 years. हंसने की बात है, मजाक. Next news, India took over the chair of the SCO. वो हो गया. कितनी बार SCO करा अभी मेरे को गुस्सा आता है वो देख के. ठीक है, अभी 1 साल तक मैं उसको नहीं पढ़ाने वाला. ठीक है, India took over the chair of the global partnership on artificial intelligence. Artificial intelligence. कितनी प्रेसिडेंसी सर एक वर्षला? बड़ा Can you repeat the name? The organization name. क्या? Name of the organization. वही तो कहा, Partnership. Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI, Global Partnership on Artificial Intelligence. Why this is important? Because it's a worldwide forum for artificial intelligence and the founder is India. India is a founding member. कब बनाई थी? 2020 में. ठीक है,
कोरोना It has 25 members. Yes, तभी पढ़ाया था मैंने ये एक्चुअली में. ठीक है, क्या था मैं भूल गया, मैंने क्या बोला. हाँ, it has 25 members. ठीक है, and we took over from France. It's a good initiative by India. ठीक है, we are trying to take advantage of artificial intelligence to solve human related problems. Okay. The France भी founding member है. Yes, France भी founding member. देखो, एक स्कीम है, नाम लिख लो, स्वमित्वा स्कीम. इसका फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है. स्वमित्वा स्कीम, SVAMITVA. ठीक है. Why it is important? देखो, इसका फुल फॉर्म ढूंढ लेना आप लोग. मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, आपको आसानी से पता चल जाएगा. सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग. मैपिंग मीन्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इज वेयर विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी. इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी मीन्स बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे इन विलेज एरियाज. ठीक है, एंड इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, because if we are able to map areas in a better way in the village, what all problems can be solved? We can identify lands which are vacant. We can make proper planning. We can also identify like which land belongs to which person. So the title holder कौन है वो भी पता चलता है. We are going to use advanced technology. क्या हो सकता है advanced technology? Satellite, drones, आर्टिफिशियल कार्ड, प्लॉट नंबर कुछ दे देंगे. ठीक है. इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम. जब सेक्टर लगता है तब सारा पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड वाज लॉन्च ऑन नेशनल पंचायती राज डे. नेशनल पंचायती राज डे 24th April 2021 पंचायती राज डे. तो इस पूरा ये जो भी पूरा है स्कीम, which agency is responsible for the implementation? Ministry of पंचायती राज. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. और मैंने जो भी बोला, ड्रोन, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रॉपर प्लानिंग, टाइटल होल्डर्स कौन है उसका उसको देना है. ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम, ऑल आर द एम ऑफ दिस स्कीम. ठीक है. यस. देखो, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करेंगे. नाम क्या है? नाम से क्या पता चलता है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है. With the help of the geography and the satellite technology, we will give you the information of the particular location. ठीक है, समझ गए हो? पंचायती राज is the nodal ministry, but if you think logically, अगर आप विलेज में हो तो रूरल डेवलपमेंट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, है कि नहीं? ठीक है, समथिंग लाइक दैट. ये लास्ट टाइम लॉन्च की गई थी एंड इट इज कंसिडर्ड एज वेरी प्रोमिनेंट स्कीम. Because the main trouble we are facing is to find out who is the title holder of land and how to use lands with the help of mapping. ठीक है. ओके, रूरल प्लानिंग हो गया. ठीक है. ओके, हमने बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन किया है, याद है? यार मैं पूछ रहा हूँ कि हैव वी कवर्ड दिस न्यूज़? वी हैव कवर्ड. पक्का ना? हाँ हाँ पक्का लखेलो. मैंने आपको
अगर कुछ हिंट देता हूँ जस्ट बैकग्राउंड, आई वांट टू नो, अगर नहीं किया है तो मैं करवा देता हूँ, देख लेना वही तो। बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन आई टॉक्ड अबाउट 3 जोन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, फिर कंटिन्यूअस जोन क्या होता है, और फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और फिर क्या आता है हाई सीज। करवाया कि नहीं करवाया? UN क्लास में है। हाँ यूएन क्लॉस करवाया है ना, कराया। ठीक है ओके चलो तो छोड़ो। चलो लास्ट टाइम जो करवाया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेक चक्र ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है? सर इंटरपोल और सीबीआई। बाकी के लोग, करा भी लास्ट खबर बहुत ना बाकी के लोगों को कुछ कहना है? लास्ट टाइम नहीं था कुछ नहीं था। वेरी गुड, इंटरपोल एंड सीबीआई, मेक चक्र वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। किसके लिए था? सर क्रिमिनल फाइंड करना। नहीं, सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। वहाँ वो Foxo। ऑनलाइन अभी याद आया वो नहीं चलता, पहले जब क्वेश्चन पूछा तब याद। कहाँ से बोल रही हूँ, मेरे को सिर्फ याद है। अच्छा 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 तो ठीक है, कंसिडर। चलो अभी डिटेल में जो तमिल संगम है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो सो द गवर्नमेंट हैड लॉन्च अ ग्रैंड स्कीम कॉल्ड एक भारत श्रेष्ठ भारत। सुनिए स्कीम का नाम सुना है? ध्यान से सुनना, मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? दैट टू our region knows about another region in great detail. Suppose I think for Gujarat last time अरुणाचल प्रदेश से एंड नागालैंड से उनके सिटीजन्स को गुजरात में बुलाया गया था, so that they can feel connection or they can know their country much better, ठीक है। हमको अभी बोले कि चलो आप लोगों को चल ले चलते हैं मिजोरम, तो मजा आएगा, ठीक है, देखेंगे क्या है कौन है उधर क्या होता है, ठीक है। सो दैट इज द मेन एम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। यूनिटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, सब अच्छा अच्छा सब करना है, हाँ करना है, ठीक है। चलो सो अंडर दिस बिगर स्कीम रिसेंटली तमिल संगम वाज कंडक्टेड। कैसे? नॉर्थ एंड साउथ कनेक्ट। नॉर्थ का हार्टलैंड क्या है? तमिल, तमिल रीजन, वन ऑफ द हार्टलैंड, वन ऑफ द हार्टलैंड। किसी को बुरा लग सकता है इसके लिए, इसमें भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। इंक्लूसिविटी एंड वी हैव टू कनेक्ट इट टू द नॉर्थ, ठीक है। किसके लिए? टू स्ट्रेंथन एंड रिकाइंडल द सिविलाइजेशनल बॉन्ड बिटवीन वाराणसी एंड तमिलनाडु, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत वाज लॉन्च इन 2015, ठीक है, ये लिख लो। एंड द नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यस ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही आएगी ना। You are educating the youth and the citizens about other regions of the country. इसमें क्या किया गया है? Every state and union territory is paired with another state and union territory, and they will conduct a close interaction among themselves, so they can know about all these things in detail and in depth. ठीक है, समझ गए भाई लोग? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। Who is the youngest prime minister of UK? UK ऋषि सुनक? नहीं, गलत। ट्राई करना है। पिट, विलियम पिट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, गलती मत कर देना। He was prime minister at the age of 23 or 24. One of the smartest prime minister of England. Okay, at such a young age. और उनके नाम का एक एक्ट भी है जो आप लोग लॉ में आगे जाके पढ़ोगे, दैट्स कॉल्ड पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784, ठीक है। बहुत टाइम पहले। तो विलियम पिट, राइट? यस, रिमेंबर दिस बिकॉज ऋषि सुनक इज वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन लास्ट 200 इयर्स। ये पिट भाई उसके पहले बैठते थे, 1784 में बैठते थे, ठीक है। अच्छा तब तो नेक्स्ट टॉपिक,
मैंने इस पूरे साल में एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, दैट डोंट फॉरगेट द सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक है, उसमें से क्योंकि बहुत क्लोज इंटरेक्शन वी हैव डिड विद देम। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन न्यूज, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन and confidence building measure, conference of interaction and confidence building measure, शॉर्ट फॉर्म में लिखो CIC। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ओके, ध्यान से सुनना। कजाकिस्तान प्रेसिडेंट नूर सुल्तान, ठीक है, अभी नहीं, ध्यान से सुनो, बाद में लिखते हैं। कैपिटल प्रेसिडेंट थोड़ी यूज Kazakhstan's President Nur Sultan, he always thought that we need to have one forum on which we can talk about peace, stability and all the good things. ठीक है, ये उन्होंने कहा था 47th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब कहा था? 47th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विच वाज हेल्ड इन 1992। But the first summit of CICA was held in 2002. अभी इतना लिखो, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेटेड हमारे जो एस जयशंकर है, he recently participated in the 6th summit of CICA First summit is about 2002. 2002, and India is one of the founding members of CICA. पता चल रहा है वजन क्यों इतना है? इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ CICA। फर्स्ट सेशन, फर्स्ट समिट कब हुआ था? 2002 में। और अभी जो 6th समिट हुई CICA की, वहां पे कौन गए थे? डॉक्टर एस जयशंकर। और वो कहां पे हेल्ड हुई थी? अगेन कजाकिस्तान कैपिटल अस्ताना। CICA पार्टी कब करता है? हर 4 साल में एक बार। मतलब समिट कब होती है? एवरी 4 इयर्स। ठीक है, पैसा थोड़ा कम होगा इनके पास, तो 4 साल में एक ही बार करते हैं। ठीक है, लेकिन जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो हर 2 साल में मिलते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ टोटल 27 nations. But the catch here is Asian countries. It is a group of 27 Asian countries. टर्की भी है लेकिन इसमें, भले ऐसा कहाँ है। इजराइल भी है इसमें, भले ऐसा कहाँ है। सर एशियन कंट्रीज कहाँ से हुए? लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं होता तो चेंज कर देता, कुछ को निकाल देता कि भाई आप एशियन नहीं हो, तो नहीं तो उसका नाम चेंज कर देता, एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, और CICA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेक्रेटेरिएट अलमाटी, कजाकिस्तान। India's participation in every this type of summit is very important. सबको हमेशा प्रिपेयर करना है। जो अगले साल एग्जाम दे रहे हैं, इंडिया पार्टिसिपेटिंग, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनी समिट्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लिखो इंडिया को-चेयर्स, इंडिया को-चेयर्स टू CICA, टू CICA committees
one on development of secure and effective transportation. आप सिर्फ लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, समझ रहे हो, बी स्मार्ट. एंड वन इज एनर्जी सिक्योरिटी. वन इज एनर्जी सिक्योरिटी. सर अभी और कितना बाकी है? હજુ તો ઘણું બધું બાકી છે. जल्दी नहीं छोड़ सकते, आज कितने कम लोग हैं. यार, you see how much news we are getting done. We are so productive today. See the bright side, guys. अभी तो देनी है सर. हाँ, बढ़िया. You don't see the larger picture, do you? Right now you should work here. You can go to good schools. That's the whole story. For me, there is same inspiration. अभी I have to also study, so I can go to a better school. ठीक है. Come on यार. ठीक है. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में मैंने बताया था. यू कैन राइट वहां पे एडिशन करके, इट रिप्लेस द यूनाइटेड कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. इट रिप्लेस द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. कमीशन को हटा के अब क्या हो गया है? काउंसिल. अभी उसमें हाई कमिश्नर कमिश्नर ही है ऐसा नहीं. ठीक है. कमीशन को रिप्लेस करके क्या हो गया? ह्यूमन राइट्स काउंसिल. एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स. उसी एरिया में ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स serves as the secretariat for Human Rights Council. समझ रहे हैं? ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेक्रेटेरिएट कौन है? ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिश्नर. ठीक है. ह्यूमन राइट्स वाला करके जाना, आता जाता रहता है. ठीक है. इसके लिए चलो, स्वामित्व स्कीम याद रह गई है सबको? 4 स्टेटमेंट पूछता हूं, ट्रू फॉल्स. ठीक है. इफ द स्टेटमेंट इज गिवन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन. क्या बोलोगे? पंचायती राज. फॉल्स. जस्ट पढ़ाया 5 मिनट के पहले भी नहीं, 5 मिनट भी कम ज्यादा बोल रहा हूं. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गाइस. ठीक है. ध्यान से सुनना. इट एम्स टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस फॉर ओनली अर्बन एरियाज. False. It's for rural area, isn't it? Very good, guys. Under this scheme, property cards would be provided to house owners through, मैंने बताया था, टाइटल क्लियर करना है कि ले भाई तेरा घर. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी विल बी यूज इन सर्वे. हाँ, ड्रोन यूज करेंगे, GIS यूज करेंगे, सैटेलाइट यूज करेंगे, सब यूज करेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. वेरी गुड गाइस. ड्रोन टेक्नोलॉजी याद रखना बस इसके लिए. ओके. देखो, फ्रॉम टाइम टू टाइम addition of caste from scheduled caste and scheduled tribe or OBC happens. ठीक है. किसको कहाँ क्या करना है, whatever that it is. So who does that addition and subtraction, scheduled caste and scheduled tribe? ठीक है, कौन करता है? लिखो. सबसे पहले लिसन द प्रोसेस, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसी 4 बार चीजें आ गई है वेयर लॉ हैज टू बी पास टू
add some caste and to delete some caste from the list of scheduled tribe. ठीक है, सबसे पहले स्टेट जो होती है वो स्टेट गुजरात, it sends a recommendation to the ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, which reviews them and sends to रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल. रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रार मतलब जो सबको लिखता रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है, ठीक है. आफ्टर दैट it is sent to National Commission for Scheduled Tribe. After that, it is sent to National Commission to Scheduled Tribe. वहां से अप्रूवल मिला, फिर कहाँ पे जाएंगे? कैबिनेट के पास, ठीक है. फिर a president's order has to be passed. Final authority कौन है? President order has to be passed for inclusion of any community. जब president उस बिल को अपनी assent देता है तब जाके any community is included in either SC और ST. समझ रहे हो? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कास्ट शुड बी कंसिडर एज SC, ST और OBC? नो, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस. फिर कुछ और बाकी रह गया है? नो, ठीक है. डू यू गाइस नो अबाउट शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज? चलो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आसाम मेघालय बॉर्डर का भी बहुत डिस्प्यूट चल रहा है. सो आई विल कवर इट नेक्स्ट टाइम. और कुछ होगा तो उसका फ्लो डायग्राम बना दूंगा, लेकिन तुम लोग पढ़ लोगे अपने आप से, ठीक है. ऐसा कुछ करता हूँ उसके लिए, ठीक है. इट्स इम्पोर्टेंट, पता होना चाहिए, ठीक है. છેલ્લી ઘડીએ શું રિવિઝન કરવાનું? अरे भाई आगरना लोकोमा के आई हैव टाइम एंड अगेन टोल्ड यू दैट स्पेशली क्लैट में तो मैंने पहला लेक्चर यहाँ पे लिया ना, दे आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर इवन 1 year old. चलो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. सो इट इज बेटर दैट डूडल फॉर गूगल 2022 अवार्ड किसको मिला था? याद है वो इंडिया का बच्चा था. नहीं 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 कौन, आई रिमेंबर द थिंग. एनीबॉडी ऑनलाइन? नूडल याद है यार. यार लास्ट लेक्चर में पढ़ाई हुई चीज है, समझ रहे हो आप लोग. पहले का तो कहाँ पे गारंटी रखूं, आप लोग लास्ट लेक्चर का माय इंडिया समथिंग कुछ था उसमें. श्लोक मुखर्जी. हाँ, और क्या बनाया था उसने? माय इंडिया समथिंग वो पुरान समथिंग इज मॉडर्नाइजेशन और कुछ प्रेजेंट का है. इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज, ठीक है. हाँ. उसका भाई ने बनाया था. ये एडिशन एंड एडिशन ऑफ द कास्ट याद रखना, ठीक है. जब कैबिनेट पास कर देता है तब क्या करना होता है? लॉ एंड दैट लॉ हैज टू बी पास. फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट, ठीक है. मतलब वो पूरी बिल वाली प्रोसेस फॉलो करते हैं. ऑफ कोर्स, हाँ 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 हाँ. Election Commission of India, 4 statements, true false. The Chief Election Commissioner presides over the Election Commission and has more powers than the other election commissioner. False. False. पावर्स. False. So because मैंने क्या बताया था? He is He is equal just one among equal. सर आपने जजमेंट से बताई थी. ठीक है. He is just 2 judgments पढ़ाए थे. He is just one among the equal. Next, true and false. The election commissioner are appointed by the president on the advice of the Chief Justice of India. False. Cabinet, ठीक है, वो लोग बताते हैं. उसकी प्रोसेस मैंने बताई थी, मुझे थोड़ी याद नहीं आ रही मुझे खुद को भी, ठीक है. तो आप लोग देख लेना, लेकिन मैंने करवाया वो भी.
The election commissioner of India are appointed for a tenure of 5 years or until the age of 65 years. True or false? False. 6 years, 6 years. 5 कर दिया 6 की जगह 6 और 65. Very good guys. The condition of services and tenure of the office of the election commissioner shall be determined by the president. वापस से the condition of services and the tenure of the office of election commissioner, chief election commissioner नहीं, election commissioner shall be determined by the president. True. प्रेसिडेंट कभी भी निकाल सकते हैं. ठीक है, true. election commissioner के बारे में मैंने बताया था. His process is different from chief election को निकालना है, follow the process of judge वाला, judge of a Supreme Court of India. ठीक है, क्या बात है, very good. चलो. If I tell you about any helicopter, for an example, advanced light helicopter, Roger. who manufacture this helicopter in India? HAL or DRDO? HAL. DRDO. DRDO designs एक मैंने क्लास में पढ़ाया था. They are not engaged in manufacturing. ठीक है. देखो ये कास्ट का कुछ ज्यादा रहा तो फिर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, वैसे तो अभी नहीं लग रहा, लेकिन एक क्वेश्चन लिख लो. Which states are included in the 6th schedule? कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल्स. उसमें स्पेसिफिकली 5th and 6th schedule are for specific states and specific regions of India. 5th and 6th. You find out that 6th schedule is applicable to Northeast. South. which states in India. ठीक है. 7 sisters. હવે હું તમને ક્વેશ્ચન આપ્યો હોય તો એનો આન્સર અત્યારે તો કહીશ નહીં. શું કહેવું તારે? બરાબર છું કે નહીં? પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્યાં આવવાના છીએ? અરે જ્યારે આવશો ત્યારે કરાવીશ, એવું ચિંતા ના કરજો. ભાઈ આપણે હવે જાન્યુઆરી પછી જ મળીશું. જાન્યુઆરી 15 પછી. વચ્ચે જાન્યુઆરી 15 ક્યાં? હા તો કે 25th ની રજા, 31st ની રજા, 15મી ની રજા, પછી 31st સન્ડે આવે? હા 31st આપણું નથી. 15મી હવે આપણે 15મી પછી જ મળવાનું છે. નો આઈ ડોન્ટ થિંક સો. હા સત્યા સરે કે મને કહે એટલે ખબર પડશે. 22મી એ મળવાનું થશે. બન્યો રજા. बहुत जल्दी कोना टू एक्साइट. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे 148. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? 148 और 170. 148. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022. बहुत पीछे है, इतना याद है. 148 और 170. 107 out of 123. 107 out of 123. It is annually released by Concern Worldwide. So out of 121, right? 23. Concern Worldwide and Wealth Hunger Life. NGOs from Ireland and Germany. Concern World कहाँ पे है? Ireland. Wealth Hunger Life Germany. ठीक है? इसमें बबल से गवर्नमेंट मतलब कि सब कलर. हाँ ऑफ कोर्स यार. हाँ हम लोग पीछे तो. हाँ तो यार थोड़ी यार मैंने बोला तो था ही यार, इसका भी जेंडर लॉजिक इनइक्वालिटी में भी. मैंने कल ही इसके बारे में पोस्ट डाला था. सर हम आपको फॉलो नहीं करते इंस्टा आईडी. नहीं तो भी ये तो मैं कह रहा हूँ सेम ऑन सेम टॉपिक.
what is the aim, what is the purpose of this report is to see that are the countries capable enough to achieve the sustainable development goal by 2030. Why? Because one of the main sustainable development goal is to end hunger. कौन सा है? डेवलपमेंट नंबर 2. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17. उसमें से सेकंड नंबर का कौन सा है? एंड हंगर. और ये किसके बारे की बात कर रहे हैं? खाने की. ओके, व्हाट इज द एम? आर द कंट्रीज कैपेबल और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, bottlenecks they are facing to achieve the sustainable development goal by 2030. There are 4 parameters that needs to be considered or that are considered by this index. You see me right now. My height is 6 feet, right? But my weight, how much do you think? 64. 50, 60. 56. By definition, I can be considered as a wasted man. Wasted मेरे ख्याल से. Wasted. Wasted man. Why? Because with respect to my height, my weight is less. नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. So आगे in your life you take things in a rational way rather than just following what other people are saying. So I am a wasted person. Why? Because my height is not equal, my weight is not equal with my height. जो मेरी height होनी चाहिए उसके हिसाब से नहीं. Do you think कि मैं अच्छे से खाता पीता हूँ? हाँ. मेरे घर पे मेरे को मिलता हुआ खाना है कि नहीं? हाँ. But still, I am, according to their criteria, I will be considered as wasted. ठीक है? ऐसे कितने 4 criteria है? लिखो. Undernourishment. Undernourishment. I will come back to this argument. ठीक है? Undernourishment, child wasting, child stunting. Stunting means low height for age. And child mortality. ठीक है? Child mortality. These are the 4 criteria. Now the government argues, और मेरे जो दोस्त हैं जो what is that of certificate, but we send food grains all around the world. Now how can we be this back on this list? I give them my example. समझ रहे हो मेरी बात? Why? Because we have such population, we have something called hidden hunger. That means we have plentiful availability of food, but what we lack is nutrients, nutritious food. They don't get it because they follow Facebook, WhatsApp, whatever, universities, and I have to follow this. Even I can be considered on their criteria as a wasted person. Though I am not a child, but अगर मैं child हूँ तब भी यही आदत थी मेरी. लेकिन तब भी सेम लॉजिक, क्या मुझे खाना मिलता था अच्छे से? हाँ. Was there non-availability? If anybody comes and tells that Indians have non-availability of food, no, that is wrong. We have that, but we are definitely far back when it comes to deficiency of vitamins, minerals. That I think our Minister of Women and Child Development, she doesn't get it. But I understand because cutie sass bhi kabhi idiot. Nonsense arguments. That's my problem. आप देखो, आप सोचो, what are the criteria? On this criteria, India will always be for a long time will be poorly judged, because it is not about who is creating highest number of wheat, who is creating highest number of rice. It's not about the availability of food. It is about the availability of nutrition. But ठीक है? So that is the whole contention between the government and global hunger index. ठीक है? But global hunger index के बारे में पता होना चाहिए ये 4 पॉइंट. ठीक है? These 4 are the parameters on which this every year it's an annual publication. ठीक है? Okay guys, that will be all. Thank you.
take news rationally in your life. Apply your mind. वरना एक साइड यहाँ पे बोल रहे हो When सगळं module पहिला પછી महीना પછી लोग एक महीना પછી January 22 January 22 निजी एग्जाम्स बाकी है और मैं क्या ओके गाइस थैंक यू हाँ यार मम्मा चली तो बड़ा वेरी गुड जिला के क्वाल वेरी गुड जाके तो मैं नहीं गया आई एम गोइंग इन फॉल गाइस नेक्स्ट ईयर अगस्त अगस्त I need to get a breaks for all the years. बेस्ट ऑफ लक सवाल है मूवी बैच मैं क्लास नहीं दे रही तो इतना ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ These are not political news. If you go in that, it's political news. Otherwise, in any exam, they will just ask you, what's the rank of? इतना इंटरेस्टेड Don't go deep. Don't go deep. For an example, yes. Suppose now they will not ask you for any other examination. कि भाई इतना ज़्यादा deep में parameters क्या है? But they will definitely ask you the overall. Rank क्या है? ये क्या है? Facts. बाकी कौन से exam देने हैं? Symbiosis वगैरह. हाँ सिंबायोसिस So just capture the bigger news. Don't go into too much details. Okay? But try to cover as much as possible and stacking book पढ़ लेना. Yeah. ठीक है. उससे बहुत सारे questions solve होते हैं. People don't take it seriously. लेकिन make sure you are. The symbiosis between SLS and हर जगह में वो बुक का important है ही. Because that is like basic. वो पता होना चाहिए आप. we it's the last week when we reading so कुछ नहीं मैं कुछ जो पढ़ा meeting में क्लास तो होगा और कुछ नहीं तो पिक्चर दे दूंगा पर क्लास तो होगा सिर्फ सैटरडे को for the class students there will be no class